हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, हमने वन शॉट की शुरुआत कर दी है और उसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स अभी तक आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसी सीरीज में हमने पिछले वन शॉट में स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसी के आज सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं एंड वी आर गोइंग टू initiate this second part of one shot of this inheritance, that means the principle of inheritance and variations with Mendelian exceptions. And in this, first is incomplete dominance. बच्चों, हमने कंप्लीट डोमिनेंस को पढ़ा था जिसके अंदर स्पेशल बात यह थी कि ओनली डोमिनेंट फीचर, dominant trait will express in next generation, and that suppress recessive trait not to express or not to be developed in next generation. देखिए, इन एंटीरिनम और डॉग फ्लावर, that's a very important for board exam, in dog flower or snapdragon or antirrhinum species, that's a good example for incomplete dominance. Here अगर आप देखें तो पेरेंट जनरेशन में you will find that parents are having the red color flower and white color flower, their gametes, and F1 generation there is pink, so that is neither red nor white. So that means dominant gene is not completely dominant over recessive gene that allow at a some extent to recessive gene to express its trait in next generation. Here there is no blending again. ब्लेंडिंग और मिक्सिंग इसमें भी नहीं है बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर ये स्पेशली दिया हुआ भी है आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent. ना ये रेड को रिजेंबल कर रहा है और ना ही ये व्हाइट को रिजेंबल कर रहा है। इट रिजेंबल्स in between, the intermediate value, that means the in between the two, so that is named as incomplete dominance, where dominant trait is not completely dominant over recessive trait. It dominant trait allow recessive trait to some extent to express in next generation. अब आप देखेंगे यहां पर if we go through with F2 generation, we will find that we have phenotype ratio, red having one plant, pink plants are two, and white plant is one. Similarly, the same we have the same genotype ratio, 1:2:1. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। पहला, dominant trait is not completely dominant over recessive trait. Dominant trait allow recessive trait at some extent to express is in next generation, that means in F1 as well as in F2 generation, and the genotype and phenotype ratio remain same, that is 1:2:1. So that the common example is snapdragon or antirrhinum species, or commonly it is named as dog flower. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज नेम्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स डोमिनेंट
trait is not completely dominant over recessive trait. It allow recessive trait to some extent to express in next generation. तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के आगे. मूव टू नेक्स्ट. अब ये नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट, कि हम किस तरीके से ये डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज डोमिनेंट और नॉट. What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. एक जीन एक्चुअली करता क्या है? Every gene has, as you know by now, contains the information to express a particular protein. So that is or particular trait. In a diploid organism, there are two copies of genes, जिन्हें हम pair of alleles कहते हैं. Now, these two alleles need not always be identical. They can be heterozygote. हमने पढ़ा है capital T, small t. So those are homozygous. डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी और होमोजाइगस रिसेसिव हो गया आपका small t, and heterozygous is capital T small t. So one of them may be different due to some changes that has undergone. अब यहां पर ये इस तरीके से इसको बता रहे हैं कि सपोज कीजिए कि एक जीन के जो दो पेयर हैं, सॉरी वन पेयर है, एक एलील को हम कह रहे हैं अनमॉडिफाइड और दूसरे एलील को हम कह रहे हैं मॉडिफाइड एलील. अब उसी के बेसिस पर देखिए ये एग्जांपल दे रहे हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स एन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, के एक जीन तो जीन जो है ये दैट जीन expressed into a protein that produce an enzyme, that's a enzyme, और ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है. ये एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एनी प्रोडक्ट. तो नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा. अब इस जीन के दो पार्ट ये कह रहे हैं, वन इज मॉडिफाइड एंड अदर इज अनमॉडिफाइड और नॉर्मल. जनरली हम इसको वाइल्ड टाइप भी बोल देते हैं, दैट इज वाइल्ड टाइप एंड दैट इज म्यूटेंट एलील. तो ये वर्ड्स भी हम, ये टर्म्स भी हम इसके साथ यूज करते हैं. तो ये ट्रांसफॉर्म करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में. ठीक है जी. तो मॉडिफाइड एलील, अब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? दिस मॉडिफाइड और म्यूटेंट एलील के ऊपर डिपेंड है. अब ये मॉडिफाइड एलील नॉर्मल है तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो जाएगी. एंड इन दैट कंडीशन दैट एफिशिएंट एंजाइम विल वर्क. अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो गई, दोनों ही मॉडिफाइड हो गए. ठीक है जी. और उस वजह से सब एंजाइम नहीं बनेगा, तो वो थर्ड पॉइंट हो जाएगा. एंजाइम नहीं बन रहा है और नॉन फंक्शनल बन रहा है, तब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई. तो इस तरीके से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखिए यही बात ये बता रहे हैं. इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, दैट मींस होमोजाइगस कंडीशन हो गई. इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. सच इक्विवेलेंट एलील आर वेरी कॉमन, सबसे ज्यादा यही कॉमन है. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने बताया. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं. सो इन दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, यहां से अब दो चीजें होती हैं, या तो एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा.
यानी कि एंजाइम फंक्शनल होगा या एंजाइम ही नहीं बनेगा, तब इस कंडीशन में the phenotype may be affected. Definitely phenotype will affect, or phenotype trait will not be dependent on the functioning of unmodified allele. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर किसी भी तरीके से अनमॉडिफाइड एलील की नहीं चलेगी। तो अनमॉडिफाइड एलील जो है which represents the original phenotype is dominant allele and the modified allele is the recessive allele. इस तरीके से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करेंगे, समझाएंगे। अब रिसेसिव में क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, तो रिसेसिव कंडीशन में होगा ऐसा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, और अब आगे बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कोडोमिनेंस। अब यहां पर एक और एक्सेप्शन आप महसूस करेंगे, समझेंगे, उसको अच्छे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और ये कोडोमिनेंस क्या कहती है, देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि जो आपका दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, एक तो डोमिनेंट एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रेसेसिव एलील, ठीक है जी, जो आपने नॉर्मल मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील बट अलाउ एट सम एक्सटेंट टू रिसेसिव एलील to express in next generation, and in F1 or F2 generation we have the in between trait the parent has, both the parent has। अब यहां पर उसी चीज को ये कह रहे हैं, till now we are discussing crosses where F1 resembles either of the two parents, that means the complete dominance, or was in between, that is incomplete dominance। but in case of codominance, अब यहां पर हम codominance की बात करेंगे, that is very very important for board exam, बहुत आता है ये बोर्ड एग्जाम में, कि that is value important point, both parents कोडोमिनेंस में F1 resembles, जो F1 जनरेशन है that resembles both the parents। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ABO ब्लड ग्रुप। गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। अब बच्चों 11th का एक पार्ट समझते हैं, जो आपने ब्लड ग्रुप्स को समझा था 11th में। भाई ब्लड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो ब्लड प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं ब्लड के अंदर पाए जाने वाले, ब्लड से रिलेटेड, वन इज एंटीजन एंड वन इज एंटीबॉडी। एंटीजन is found at the surface of RBCs, and antibody is found in प्लाज्मा, और इसीलिए इसको प्लाज्मा फैक्टर भी कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज प्लाज्मा फैक्टर। अब ये एंटीजन भी आपके दो तरीके के होते हैं, दीज एंटीजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, एंड एंटीबॉडीज आल्सो ऑफ टू टाइप, एंटी ए जिसको हम स्मॉल ए भी कह देते हैं, और दूसरा एंटी बी जिसको हम स्मॉल बी भी कह देते हैं। तो इस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है ब्लड प्रोटीन्स की। अब जो ये ब्लड एंटीजन है, antigens are formed by a gene that is named as I gene। अब ये I gene किस तरीके से लिया गया है, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब इस I gene के रेफरेंस को हम समझते हैं, बात करते हैं इसकी।
अब इस आई जीन की बात करते हैं। देखिए जो आई है, दिस आई मीन्स, दिस आई इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये वर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन से बना है, टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन से बना है। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम and globulin means spherical protein. That means gene that forms spherical proteins found in immune system. So gene that forms spherical proteins found in immune system, that is I gene. अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आई जीन 3 तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। दैट हैज 3 वर्जन्स। अब यहां पर एक और आप नई इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील। दैट इज मल्टीपल एलील। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी हम जीन्स पढ़ते हुए आए हैं उनके 2 वर्जन्स हैं। दे हैव ओनली 2 वर्जन्स। यहां पर ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं जीन दैट हैज 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव ट्रेड्स और 3 डिफरेंट contrasting traits or 3 versions. That's why it is named as multiple allele. These 3 traits are IA, IB एंड IO। O का मतलब है यहां पर 0। ठीक है जी, यहां O का मतलब 0 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब दिस विल दैट कोड्स फॉर A एंटीजन, that codes for B antigen, and that codes for नो एंटीजन। ये किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता है। इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट आई के आई जीन के डिफरेंट एलील्स हुए। और ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं कि एक जीन के एक 2 से ज्यादा एलील हैं। सो दैट इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं मल्टीपल एलील। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर अगर हम देखें तो ABO ब्लड ग्रुप shows multiple inheritances। अब कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंसेस शो करता है, लेट्स फोकस ऑन दैट। इस बात को भी समझते हैं। तो एक टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहला हो गया जी हमारा ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन, फिर एंटीबॉडी, फिर जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड देन वी हैव द पैटर्न ऑफ inheritance. So this is name of blood group, sorry, type of blood group, type of blood group, सेकंड इज एंटीजन कौन सा होगा, फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी, और जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा, और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा। सो ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स फोकस ऑन दीज। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए ब्लड ग्रुप जब कहा जाएगा अगर एंटीजन ए है और एंटी बी इज द
antibody. In that, genetic representation will be IAIA or IAIO, and this is pattern of inheritance is dominance, क्योंकि here A is dominant over, डोमिनेंस शो कर रहा है इधर. नेक्स्ट इज बी. बी ब्लड ग्रुप तब होगा जब एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी आपकी एंटी ए होगी, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन आई बी होगा या आई ओ होगा, और ये भी आपको डोमिनेंस शो करेगा. दैट आल्सो शोज डोमिनेंस. नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं अब. हियर is AB blood group. Here both the antigens will form. There is no antibody or nil. कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं बनती है. और here that is IAIB, and that is another most important property of blood group, and this is codominance. दिस इज नेम्ड एज कोडोमिनेंस. ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. तो अभी तक ब्लड ग्रुप आपको दो स्पेशलिटी शो कर चुका है. फर्स्ट इज मल्टीपल एलिलिज्म और दूसरा है आपका ये कोडोमिनेंस. लास्ट इज ओ ब्लड ग्रुप. ओ अभी मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली जीरो. जीरो इसलिए है क्योंकि कोई भी एंटीजन ये प्रोड्यूस नहीं करता. ना तो ये ए एंटीजन बनाता है, ना ये बी एंटीजन बनाता है. यहां पर दोनों एंटीबॉडी होंगी. एंटी ए भी होगी इसके पास और एंटी बी भी इसके पास. दोनों एंटीबॉडी होंगी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ओ से, या स्मॉल आई भी लिख देते हैं आई ओ के लिए. तो आप इसको भी इसी तरीके से दिखा सकते हैं आई ए स्मॉल आई, और इसको भी दिखा सकते हैं आई बी स्मॉल आई और करके. तो ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और दैट इज रिसेसिव फीचर. ये आपको रिसेसिवनेस शो कर रहा है. तो अब आप देख रहे हैं अकेला एक ब्लड ग्रुप ओ ही आपको मल्टीपल इनहेरिटेंसेस शो कर रहा है. ये पहली शो कर रहा है मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील. दूसरी शो कर रहा है ये कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस. तीसरी शो कर रहा है ये आपका डोमिनेंस, और चौथी शो कर रहा है ये आपका रिसेसिव फीचर. अब इसमें भी आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इसको और बेहतर समझा सकते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं, देखिए जी, कि रिसेसिव ओ ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, ओ ब्लड ग्रुप. और डोमिनेंस ए और बी ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं. कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप शो कर रहा है. और मल्टीपल एलिलिज्म आई जीन शो कर रहा है, दैट हैज थ्री फॉर्म्स ऑफ जीन. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. बहुत पूछा जाता है. नंबर ऑफ फिनोटाइप्स की हम बात करें तो चार फिनोटाइप, फोर फोर फिनोटाइप्स आप देख रहे हैं. ए बी, ए बी, ए बी एंड ओ. तो ये चार फिनोटाइप्स शो कर रहा है. अब इसी तरीके से नंबर ऑफ जीनोटाइप्स की बात करें हम, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर सिक्स. सिक्स जीनोटाइप्स शो कर रहे हैं. आपने ए के लिए देखा, दो जीनोटाइप हैं, आई ए और आई ओ. दिस इज फॉर ए. इसी तरीके से फॉर बी, आई बी और आई ओ. इसी तरीके से हम बात करें तो ए बी के लिए, फॉर ए बी ब्लड ग्रुप आई बी, एंड फॉर ओ
दैट इज एग्जैक्टली द जीरो, क्योंकि कोई एंटीजर नहीं बनता। सो द आई ओ और स्मॉल आई, तो अब आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देर आर 6 जीनोटाइप। यहां पर ए शो कर रहा है, ए और बी, दे आर शोइंग डोमिनेंस। AB is showing codominance and O is showing recessiveness। तो इस तरीके से ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें बच्चों। मैंने आपको बड़े ही खास तरीके से आप तक ये पहुंचाया है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से एक एक बात को समझ सकें और अपने दिमाग में बैठा सकें। देखिए जी, यही चीज यहां पर ये कह रहे हैं। अगर हम देखें तो बुक ने भी कुछ और नहीं कहा है, जो हमने डिस्क्राइब किया है उसी को ही हम बुक में भी देख सकते हैं। दैट इज नथिंग न्यू। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, यही हमने कहा था। आई इज द इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड from its surface and kind of sugar controlled by the जीन, जो इसको कंट्रोल करता है। इसको मोर स्पेसिफिक बता दिया, इसको ध्यान रखें। जीन आई हैज 3 एलील्स, ए आई बी एंड आई स्मॉल आई। इसी तरीके से एलील्स आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, वाइल आई प्रोड्यूस नो फॉर्म ऑफ शुगर, ये कोई शुगर फॉर्म नहीं करता। or because humans are diploid, each person possesses any of the two three, और जो ये 3 जीन एलील्स हैं, या तो आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इन द अदर वर्ड्स ए एंड आई are represented only IA express because I does not produce any sugar, when IB and small I represents, so that IB expresses, but when IB are present together, they both express, and this is the codominance। और ये हमारा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ एक, और दूसरा मल्टीपल एलिलिज्म, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हमारा दूसरा। इसी तरीके से हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव both A and B types of sugar, since they are 3 different alleles, there are 6 different combination of these alleles that possible, and therefore 6 different type of genotypes of human that blood appears। तो ये अलग अलग तरीके के 4 ब्लड टाइप्स बनेंगे, फिनोटाइप्स 4 होंगे, और उनके जीनोटाइप आपके 6 होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब ये देखिए सेम टेबल ये शो कर रहे हैं जो अभी हमने बनाई थी। एलील फ्रॉम पेरेंट ए, एलील फ्रॉम पेरेंट बी, जीनोटाइप क्या होगा और उससे क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास डेवलप होगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 4 तरीके के आपके फिनोटाइप हुए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 वी हैव द 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, जिसमें आप देख रखे हैं 1 और 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 जीनोटाइप हमारे बन रहे हैं। देखिए यहां पर ये उसी चीज को कह रहे हैं कि मल्टीपल एलील्स वाली बात आ गई। 3 एलील्स गवर्निंग द सेम करेक्टर, सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कैन बी फॉर्म ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। अब ये देखिए फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, कि an individual only 2 alleles, लेकिन multiple alleles can be found only when we are studying population। Again a very important value important point for MCQ। जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन स्टडीज की बात करेंगे, तब ये मल्टीपल एलील आपको बड़े फायदे का सौदा है, ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है। देखिए जी, अब नेक्स्ट ये पूरा पैराग्राफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, एंड दैट इज अगेन अ वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये निश्चित तौर पर ये भी आपको बोर्ड में मिल सकता है। तो इसको तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। अब इसको हम यहां पर ये आपको बता रहा है अबाउट प्लियोट्रॉपी, अनदर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। ये फिर मेंडल लॉ का एक और एक्सेप्शन है, जहां पर पी सीड्स के अंदर, इन पी सीड्स वन जीन exhibit two different traits। एक जीन दो डिफरेंट ट्रेट्स शो कर रहा है, और दीज जीन्स आर, ये ट्रेट्स हैं आपके, एक तो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, और दूसरा है आपका सीड शेप। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस और दूसरा सीड शेप। देखिए जी, स्टार्च सिंथेसिस पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। It has two alleles, capital A, capital B, small b. Starch is synthesized effectively by homozygotes condition, capital B, capital B. Large starch grain synthesis produce होता है इसके अंदर। small b that has the lesser efficiency of starch synthesis produce smaller starch grains। मैच्योर होने पर ये सीड्स राउंड होते हैं, कैपिटल बी वाले, और स्मॉल बी वाले रिंकल्ड होते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको दिमाग में रखना है। लेट्स फोकस ऑन दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखिए, हम यहां पर अब सिंगल जीन फॉर पी सीड्स, और ये सिंगल जीन एग्जिबिट टू phenotypic traits। Hence, this is the example of प्लियोट्रॉपी। ये प्लियोट्रॉपी को आपको जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है। देखिए जी, ये क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। देखिए, पेरेंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल बी, और अभी चलिए पहले इसको हम बाद में करते हैं। पहले इसको बताते हैं हम कि ये एक तो बताएगा आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, और दूसरा ये बताएगा सीड शेप। सीड शेप। अब इसमें होगा क्या, देखिए जी, हमने लिया पेरेंट, और पेरेंट का फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप हो गया जी आपका लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड राउंड सीड, और इसी तरीके से दूसरे का हो गया स्मॉल स्टार्च ग्रेन एंड रिंकल्ड सीड्स। ये रिंकल्ड सीड होगा। अब इस बेसिस पर इसके जीनोटाइप की हम बात करें तो दैट विल बी कैपिटल बी, दैट इज स्मॉल बी। और इसको हम पहले हम लें इसके गैमीट्स, तो गैमीट्स विल बी कैपिटल बी। हियर वी हैव स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, स्मॉल बी, दैट इज द F1 progeny।
अब इस F1 प्रोजेनी को अगर हम पनेट स्क्वायर से बनाए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी F2 progeny, what we will get capital B, capital B, capital B, small b, capital B, small b and small b, small b. तो अब आप यहां देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये आता है कि हियर कैपिटल बी बी क्या हुआ, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट बट दैट हैविंग आपका लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड दिस इज ऑफ राउंड इन शेप, राउंड सीड होगा ये। जो दूसरा है आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, जो दो प्लांट बने हैं हमारे, दो सीड डेवलप हुए हैं, दैट इज मिक्स्ड और हाइब्रिड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज बेसिकली इंटरमीडिएट। ये यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, और यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट हैज द इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन एंड हैविंग द राउंड अपीयरेंस, राउंड सीड ही होगा लेकिन इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर ये आपको एक तरीके से बेसिकली कोडोमिनेंस शो कर रहा है, ये कोडोमिनेंस शो कर रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ने अपने, बल्कि को नहीं, इनकम्प्लीट, दैट शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, इन बिटवीन बन रहा है, सो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन राउंड सीड डेवलप होगा यहां पर। और लास्ट का स्मॉल बी दैट इज प्योर अगेन होमोजाइगस but it is showing a small starch grain and that is showing wrinkled seed. तो अब इसके वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हम, तो ये आपका सीड शेप के बेसिस पर शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस। स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस पर, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस की हम बात करें तो दैट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि इसमें आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो दैट विल बी 1:2:1, ये दोनों सेम आएंगे। और वन जीन दो तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, एग्जिबिट, पहला सीड शेप और दूसरा स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज शोइंग डिफरेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपका ये चीज शो कर रहा है प्लियोट्रॉपी, दैट इज शोइंग प्लियोट्रॉपी। तो एक तो आपको ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और ये प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। सो दैट इज अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जो आपको अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखना है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत वैल्यूएबल है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो अभी तक हमने मेंडल इनहेरिटेंस के एक्सेप्शंस की बात करें
तो हमने पढ़ा अभी तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने पढ़ा फिर कोडोमिनेंस, हमने पढ़ा आपका मल्टीपल एलील, हमने पढ़ा प्लियोट्रॉपी। तो ये सभी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप यहां भी देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन्होंने दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट इज therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or product that has information for. It depends as much as on gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by same gene. तो यहां पर ये प्लियोट्रॉपी का जिक्र इन्होंने कर दिया है। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखिए मेंडल बड़े जिसे कहते हैं ना अभागे रहे। मेंडल जो है उनको बहुत ज्यादा उनकी किस्मत जिसे कहते हैं भगवान का साथ नहीं मिला। मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया था 1865 में, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 तक उनका काम की कोई पहचान नहीं हुई, उनका काम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब उसके 4 रीजन इन्होंने दिए हैं जो अक्सर आपको पहले 2 नंबर में आ जाते थे, लेकिन अब मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम आपका 1 से 1 नंबर का क्वेश्चन मानकर चलिए आप। इससे ज्यादा का मुझे इसकी उम्मीद अब नहीं लग रही है कि ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, बट हैज द वैल्यू। देखिए जी, फर्स्टली कम्युनिकेशन उन दिनों आसान नहीं था। दोज डेज हिज वर्क कुड बी नॉट वाइडली पब्लिश। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि उनका काम जो था वो ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेशन बेहतर ना होने की वजह से पहुंच नहीं पाया। दूसरा, सेकेंडली, जीन्स फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स as stable and discrete units that control the expression of traits, and for the pair of alleles which do not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for apparently continuous variation seen in the nature। तो इस बात का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बेसिकली। अब दे क्या पाए, क्या उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन देने का तो मौका दिया ही नहीं गया था, उनके सामने तो ये बात हुई नहीं थी, क्योंकि इतना पब्लिश हुआ ही नहीं। Thirdly, Mendel approach of using mathematics to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable to many of the biologists of that time। तो ये भी एक तीसरा पॉइंट था। उस टाइम के लोगों को, उनके कंटेम्परेरीज को मैथमेटिक्स का इस्तेमाल क्यों हुआ है, इसका भी कोई जवाब वो नहीं दे पाए। नेक्स्ट, फाइनली मेंडल्स वर्क suggested that factors जिन्हें बाद में जीन कहा गया were discrete units। He could not provide any physical proof of the existence of factors or say that why were made up of, कि किस तरीके से बने हुए होते हैं। भाई उसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक उसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन 4 वजह से, इन 4 रीजन से मेंडल का काम 1900 तक सामने नहीं आया। और 1900 में भी सामने क्यों आया, अब उसको डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बच्चों चारों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस में लगाकर या करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट, इसके लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को दुनिया तक लेकर आए। इन 1900 3 साइंटिस्ट, एक तो डी वेरीज, एक कॉरन्स और एक वॉन टेस्मार्क। डी वेरीज, कॉरन्स एंड वॉन टेस्मार्क, these independently, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, independently rediscover Mendel's result
ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये तीनों ने अलग अलग, एक साथ नहीं, इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या पाया। अब इनके लिए भी उस काम को ऑब्जर्व करना आसान क्यों हो गया था, क्योंकि बाय दिस टाइम एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेक प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू नो द अबाउट द सेल डिवीजन। तो ये पहला रीजन था जिसकी वजह से ये मेंडल के काम को और बेहतर ढंग से समझा पाए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के डिवीजन के थ्रू क्रोमोसोम्स का पता लगा कि क्रोमोसोम्स, और क्रोमा मीन्स इस आपका कलर्ड, सोमा मीन्स बॉडी। 1902 में मियोसिस पूरी तरीके से पता लग चुकी थी। तो ये कुछ कारण थे जो इन तीनों ने मेंडल के काम को समझा पाए। उसके बाद फिर ये पूरा एक आपका पूरा इन पर बन गया ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम दूसरे वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वाल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी। इन दोनों ने भी क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को कहा कि जीन्स के बिहेवियर के साथ होते हैं। देखिए जी, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स पाए जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनके बेसिस पर जो जीन्स हैं वो भी सेपरेट होंगे। इसीलिए इन्होंने दोनों ने ये कहा, वाल्टर सटन ने और थियोडर बावेरी ने, कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल है। जिस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम पर, उनके ऊपर प्रेजेंस जीन भी उसी तरीके से सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड माइटोसिस, ये अब आपको दिखा रखा है, उसी चीज को ये समझा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा हुआ इन थ्योरीज के बेसिस पर, जो आपके कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, वो सेम जो आपने मियोसिस पढ़ा, G1 G2 में आपने देखा इनके डुप्लीकेशन हो गया, इनका सिंथेसिस होता है बीच में, इसमें एस फेज में। उसके बाद आप देख रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज के दौरान सेपरेशन दिखा रहे हैं, मियोसिस सेकंड में सेपरेशन दिखा रहे हैं, एंड देन वी हैव द जर्म सेल्स। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग आपको टुकड़े दिखाए जा रहे हैं, सेगमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द जीन एक्चुअली। और इसी चीज को इन्होंने फिर कंपैरेटिव अकाउंट में दिखाई दिया है, बताया है। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से ये ध्यान में रखना है, ये पहला क्रोमोसोम्स के बारे में है, दूसरा जीन के बारे में। फर्स्ट इज फॉर क्रोमोसोम, सेकंड इज फॉर जीन। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए, फिर उसको दो अलग अलग कंपैरिजंस के साथ दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपनी बुक में इसको क्लियरली कलर्ड व्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दो केसेस लिए हुए हैं, जिसमें ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स और येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एक पोल पर है। इसमें ऑरेंज और रेड एक साथ है और येलो और ग्रीन एक साथ है। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग करके आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल है जीन के बिहेवियर के, या जीन का बिहेवियर पैरेलल है क्रोमोसोम के बिहेवियर के। तो दैट इज नेम्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। सटन एंड बॉवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लेड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट कैरीड। तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन। दो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को उन्होंने मेंडेलियन थ्योरी के साथ मैचअप किया और इसी को नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब बच्चों यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस जब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वेरिफिकेशन किया इस क्रोमोसोमल थ्योरी का थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ chromosomal theory of inheritance, and it is done by Thomas Hunt Morgan, and that is led to the discovery for the variation of sexual reproduction produced। अब इसके ऊपर मॉर्गन ने
टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को किया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया। अब वाई क्यों चूज किया? तो ये सारे उसके वाई ही सिलेक्टेड ड्रोसोफिला। देखिए जी, पहला, इसको आसानी से सुटेबल स्टडीज के लिए देखो, एक तो ग्रोन किया जा सकता है इसे लैब में, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको आप, इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस होती है, ये तीसरा पॉइंट। और क्लियर डिमार्केशंस हैं, डिफरेंशिएशंस हैं एनिमल, सॉरी, मेल और फीमेल में, जो इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, ये फोर्थ पॉइंट। आप देख भी सकते हैं, मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, ये फीमेल है और ये मेल है, आप देख सकते हैं इजीली यू कैन डिफरेंशिएट देयर अपीयरेंस। और हेरिडिटी वेरिएशन बहुत सारे, बहुत माइक्रोस्कोपिक बेसिस पर लो पावर माइक्रोस्कोप में आप शो कर सकते हैं, इस देख सकते हैं। इसके अलावा केवल 8 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, यानी कि 4 पेयर्स, तो उनको एग्जामिन करना आसान हो जाता है। तो इन सारी वजह से जो मॉर्गन है, सॉरी, हाँ जी, मॉर्गन, उस मॉर्गन ने इसको सुटेबल माना और इसको अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश की। तो बच्चों, अब इस वन शॉट में इतना ही रखते हैं, आगे मैं आपको इसके साथ जोड़ूंगा। अभी इसको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करिए, मेहनत करिए, समझिए और इसको आगे के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 10 नंबर के बीच में, और बहुत चीजें आती हैं इसमें, क्वालिटी चीजें आती हैं, इसलिए इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है।